Hello students, welcome back to our channel. Today we are going to start with a new chapter of class 4th. Take out your discovering book and we will start with our chapter 5. Before that, please mark the syllabus. Open content page. In this, mark the chapter number 1. Chapter 2, Chapter 5, Chapter 7, Chapter number 8, Chapter number 10, Chapter number 11 and Chapter number 12. Okay, so these are the chapters which are coming in the exam. So first we have completed, second chapter we have completed. Now today we will start with our 5th chapter, that is the Elephant's Child. Okay, so open chapter number 5. Yeah, page number 67. Okay, name of the chapter is The Elephant's Child. Now we will start reading our chapter. We will read first, then I'll explain you, and then we'll start with our copy work. Okay? So let's start. First is, did you know Joseph Rudyard Kipling was an English journalist, short story writer, poet and a novelist. Now who has written this story? ये स्टोरी किसने लिखी है? जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग. ओके, ये कौन थे? इंग्लिश जर्नलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, पोएट थे एंड नोवेलिस्ट. ओके, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर राइटर्स इन द यूके, यूनाइटेड किंगडम. ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, making him the first English language writer to receive the prize. Curiosity makes us knowledgeable. This is the thought, that curiosity makes us knowledgeable. Curiosity means जानने की इच्छा, वो हमें क्या बनाती है? Knowledgeable person. Okay? Now come to the chapter reading. The Elephant's Child. In the far-off times, the elephant had no trunk. It only had a blackish, bulgy nose, as big as a boot, that it could wriggle about from side to side, but he couldn't pick up things with it. Now this means that far off times, it means बहुत टाइम पहले, the elephant had no trunk. Elephant की trunk नहीं थी. It only had a blackish मतलब black color दिख रहा है आपको. Bulgy nose. Now what is the meaning of bulgy? That is curved nose. Curved nose दिख रही है? Bulgy means curved. Okay, so curved nose as big as boot, that it could wriggle. Wriggle means, write down wriggle over here. Wriggle means that it had twist and turn with a quick within movements. Okay, so he wriggled his nose from side to side, मतलब अपना nose को वो twist करता रहता था, turn करता रहता था इधर से उधर. Okay, but he couldn't pick up things with it. मतलब जैसे एलिफेंट्स अपनी ट्रंक से कोई भी चीज़ उठा लेते थे ना, बट ये नहीं उठा पाता था. ठीक है, ही कुडंट पिक अप द थिंग्स विद इट, नहीं उठा पाता था क्योंकि एक तो नोज़ बहुत छोटी सी, इसकी ट्रंक जो थी, ट्रंक तो थी नहीं, हम ट्रंक तो बोल ही नहीं सकते हैं ना. इसकी नोज़ कैसी थी? बल्जी नोज़ थी. और कैसी थी? रिगल करने वाली, मतलब हिलती रहती थी, ट्विस्ट एंड टर्न करती रहती थी. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ इज, बट there was one elephant, a new elephant, an elephant's child who was full of stable curiosity, and that means he asked ever so many questions. He asked his tall aunt, the ostrich,
why her tail feather grew just so, and his tall aunt, the ostrich, spanked him with her hard claw. Now it's mean that कि ये जो elephant था ना, ये बहुत क्यूरियस एलिफेंट था, मतलब इसको हर चीज़ को जानने की इच्छा होती थी. स्टेबल मीन्स स्टाइबल, इट्स मीन्स दैट कि जो ये न्यू एलिफेंट था ना, एलिफेंट्स का बच्चा, बेबी चाइल्ड है ना, वॉज फुल ऑफ सेशेबल क्यूरियोसिटी. नाउ सेशेबल क्यूरियोसिटी इट्स मीन दैट कि जानने की इच्छा, और जो कभी मतलब फुलफिल, वो जो विश है वो कभी फुलफिल नहीं हो सकती थी, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस थे बेबी एलिफेंट के पास. तो फर्स्ट क्वेश्चन उसने किससे पूछा? फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड फ्रॉम दी ऑस्ट्रिच. ओके, ऑस्ट्रिच आंट से, मतलब टॉल आंट थी. ऑस्ट्रिच देखा है ना आप सबने कैसा होता है ना. उससे पूछा कि वाई हर टेल फेदर्स ग्रू जस्ट सो, मतलब उसके फेदर्स जो है ना वो क्यों बार बार बढ़ते जाते और इतने बढ़ते जाते हैं, एंड इतना लंबा दिखता है वो आंट, मतलब ऑस्ट्रिच की बात कर रहा है यहाँ पे बेबी एलिफेंट. ये क्वेश्चन सुन के ऑस्ट्रिच ने क्या कर दिया? स्पैंक्ड मीन्स थप्पड़ मार दिया. किससे थप्पड़ मारा? स्पैंक्ड हिम विद हर हार्ड क्लॉ मतलब पंजों से, अपने फीट से, है ना, अपने पंजों से थप्पड़ मार दिया. ठीक है. नेक्स्ट, ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल. अब टॉल अंकल के पास चला गया. सबसे पहले वो टॉल आंट के पास गया. टॉल आंट इज एन ऑस्ट्रिच. सेकेंड, टॉल अंकल. अब टॉल अंकल कौन है यहाँ पे? Giraffe, who made his skin spotty. What made his skin spotty? And his tall uncle, the giraffe, spanked him with his hard hoof. अब hoof का मतलब क्या होता है? Again, feet. Foot होता है ना, पैर, है ना, तो उससे बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया, स्लैप मार दिया, है ना. Spanked means slap. Okay. स्लैप विद एन कोई हैवी ऑब्जेक्ट, कोई फ्लैट ऑब्जेक्ट जिसे बोल सकते हैं अपन, है ना. फ्लैट ऑब्जेक्ट से स्लैप कर देना किसी को, उसको बोलते हैं हम स्पैंक्ड. ओके. सो फर्स्ट ऑस्ट्रिच से पूछा उसने क्वेश्चन कि आपके फेदर्स इतने जल्दी कैसे ग्रो हो जाते हैं, टेल के फेदर्स. तो फिर थप्पड़ खाया उसने. नेक्स्ट जिराफ के पास गए. जिराफ से बेबी एलिफेंट ने पूछा कि आपकी बॉडी इतनी स्पॉटी कैसे है? उनकी डॉट्स होते हैं ना जिराफ की बॉडी पे, है ना. तो वही उन बेबी एलिफेंट को क्यूरियोसिटी थी कि ऐसी कैसी स्किन है, स्पॉटी स्किन्स. ओके. तो उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया. फिर जिराफ ने क्या किया? जिराफ ने अपने हार्ड हूफ से, हूफ मतलब फुट, है ना, पैरों से, एक पैर से उसको स्पैंक्ड कर दिया. ओके. नेक्स्ट, he asked about everything that he saw. हर चीज़ के बारे में पूछता था जो उसे दिखता था. और heard मतलब सुनता था, और felt जो उसको फील होता था, जो, और smelled जो वो स्मेल करता था, और touched जो वो टच करता था, and all his uncles and his aunts spanked him. तो हर चीज़ के बारे में वो क्वेश्चन करे, और हर चीज़ के बारे में वो, उसको आंसर तो मिलता था नहीं, तो क्या मिलती थी? स्लैप मिलती थी सबसे, सारे अंकल्स और सारे आंट से. बट उसको क्यूरियोसिटी थी हर चीज़ के बारे में जानने की, है ना. हर चीज़ के बारे में पूछता था, जो भी वो देखता था, जो भी वो सुनता था, जो फील करता, जो स्मेल करता था, जिस चीज़ को वो हाथ लगाता था, टच करता था, है ना, हर चीज़ के बारे में उसको जानना था. तो वो कैसा एलिफेंट था? सटाइबल क्यूरियोसिटी. ओके. एंड स्टिल ही वॉज फुल ऑफ इनसटिएबल क्यूरियोसिटी. बट एट द लास्ट उसको कोई आंसर मिलता नहीं था. तो इनसटिएबल क्यूरियोसिटी. ओके, क्लियर? नाउ टर्न द पेज. One fine day, one fine morning, the elephant child asked a new question that he had never asked before. He asked, "What does the crocodile have for dinner?" अब एक फाइन मॉर्निंग मतलब एक सुबह उसने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जो इसने कभी पूछा ही नहीं था. अब वो क्वेश्चन क्या था? वो क्रोकोडाइल के बारे में था. क्रोकोडाइल के बारे में उसने क्या पूछा कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता है.
उसने सिर्फ इतना सा पूछा था, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर, क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता है. देन एवरीबडी सेड हुश in a loud and dreadful tone and they spanked him long and hard. और सबने उसको वापस से spanked कर दिया, है ना. Underline this line. Next, he came upon Kolo Kolo bird sitting in the middle of thorn bush and he asked, I want to know what the crocodile has for dinner. फिर वो कोलो कोलो बर्ड के पास गया. कोलो कोलो बर्ड पता है क्या होती है, कैसी होती है, देखो पिक्चर में दिख रही है ना आपको, है ना. इस बर्ड से वो पूछने लगा कि मुझे जानना है कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता है. तो वो बर्ड से पूछ रहा था कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता है. वांट टू नो, आई वांट टू नो, मुझे जानना है. ठीक है. और वो बर्ड कहाँ बैठी हुई थी. बर्ड इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द थॉर्न बुश. दिख रही है ना, थॉर्न बुश के बीच में बैठी हुई थी. सो लेट्स सी कोलो कोलो बर्ड ने क्या रिप्लाई किया. द कोलो कोलो बर्ड replied with a mournful cry. Now mournful cry means sad. So write down over here, mournful cry means very sadly, very sorrowfully. Reply किया, go to the banks of the great grey green greasy Limpopo river to find out. तो बर्ड ने कोलो कोलो बर्ड ने रिप्लाई किया वेरी सैडली कि जाओ तुम बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रे ग्रीन ग्रीसी लिम्पोपो रिवर जाओ और पता करो कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता है. ठीक है. तो अंडरलाइन कर लो कहाँ बर्ड ने बोला था जाने को. लिम्पोपो रिवर. ओके. ग्रीसी लिम्पोपो रिवर. ओके. That very next morning the elephant's child set out to find out what the crocodile has for the dinner. So उसके अगले ही morning, that very next morning, है ना, अगली ही morning elephant निकल पड़ा. elephant child set out to find out, है ना, निकल पड़ा ढूंढने के लिए कि crocodile dinner में क्या खाता है. After walking for miles, at last he came to the banks of the great grey green greasy Limpopo river. मतलब बहुत दूर तक चलने के बाद फाइनली वो पहुंच गया था कहाँ पे. टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रे ग्रीन ग्रीसी लिम्पोपो रिवर. सॉरी यहाँ. ओके. वेट आई erase that. Next, now so after walking for miles, at last he came to the banks of the great grey green greasy Limpopo river. So मतलब बहुत दूर तक चलने के बाद फाइनली वो कहाँ पहुँच गया. to the banks of the great grey green greasy Limpopo river. ओके. ये आपको ये नाम याद करना पड़ेगा बच्चों, रिवर का नाम. ओके. Now you must know and understand that till that very minute this elephant's child had never seen a crocodile. इसका ये मतलब है कि हमें ये पता होना चाहिए और ये समझ आना चाहिए कि उस मोमेंट हमें ये देखना है कि हमें ये सोचना है कि उस एलिफेंट के बच्चे ने कभी क्रोकोडाइल नहीं देखा था. एंड इवन ही डिड नॉट नो हाउ इट लुक्स लाइक. वो जानता ही नहीं था क्रोकोडाइल दिखता कैसा है. बट देन टू ही इज़ वेरी क्यूरियस अबाउट टू नो दैट कि क्रोकोडाइल डिनर में खाता क्या था. ओके. चलो आगे पढ़ते हैं. And he did not know what one looked like. The first thing that he saw was a bicolored python rock snake curled around a rock. पाइथन देखा है, स्नेक होता है ना, जहरीला स्नेक होता है. तो वो किस पे था. एक रॉक के ऊपर कर्ल किया हुआ था, मतलब बैठा हुआ था, अपने आप को लपेटा हुआ था उसने, पाइथन ने. बाई कलर्ड मीन्स डबल कलर्ड का. ओके. स्क्वीज मी as the elephant's child most politely, but have you seen a crocodile? उसने पाइथन से पूछा, बाई कलर्ड पाइथन से, है ना. एलिफेंट चाइल्ड ने बाई कलर पाइथन से बोला एक्सक्यूज मी, है ना. और क्या बोला, हैव यू सीन अ क्रोकोडाइल.
क्या आपने क्रोकोडाइल को देखा है? इन अ वॉइस ऑफ ड्रेडफुल स्कॉन. So dreadful scorn means unhappy, or we can say that कि in a very unhappy voice में उसने बोला. The snake replied that what will you ask me next? अब आगे और क्या पूछने वाले हो तुम मुझसे, है ना. वेरी अनहैप्पी और लाइक स्क्रॉनी वे में उसने बोला कि आगे क्या पूछने वाले हो तुम मुझसे. Then again the baby elephant said, excuse me, said the elephant's child, but could you kindly tell me what he has for dinner? सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था क्या तुमने क्रोकोडाइल को देखा है. तो स्नेक ने वेरी अनहैप्पीली, और मतलब बोलते ना कि डर डर के रिप्लाई किया है ना, इन अ वेरी फियर वे. फियर भी लिख लो यहाँ पे, FEAR, फियर. इन अ वेरी फियर वे दैट कि अब आगे क्या पूछने वाले हो. व्हाट विल यू आस्क मी नेक्स्ट. सो एलिफेंट के बच्चे ने, मतलब चाइल्ड ने बोला कि तुम्हें पता है क्या कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता है. देन द स्नेक स्पैंक्ड द एलिफेंट्स चाइल्ड विद हिज टेल. अब यहाँ पे स्नेक ने भी स्पैंक कर दिया है ना, विद हिज टेल. ओके, दैट इज ऑड, सेड द एलिफेंट्स चाइल्ड. ये कुछ अलग था क्योंकि उसने सिर्फ अपने पैरों से ही मार खाई थी ना सबके, और यहाँ उसने टेल से मार खाई. तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दिस इज ऑड, ये कुछ डिफरेंट है. ही डिड नॉट वॉन्ट टू बी स्पैंक्ड एनी मोर. अब उसे और मार नहीं खानी थी, है ना. सो ही सेड गुड बाय वेरी पोलाइटली, और उसने स्नेक को बोल दिया ओके गुड बाय, है ना, बड़े प्यार से, पोलाइट वे में, मतलब वेरी कामली और प्यार से बोला. एंड वॉकड अहेड. अहेड मीन्स आगे बढ़ जाना. टिल ही रीच द एज ऑफ द रिवर. एज ऑफ द रिवर मतलब कोने पर. ओके, देन ही रियली सॉ अ क्रोकोडाइल. फिर एट लास्ट उसने क्रोकोडाइल देखा. एंड द क्रोकोडाइल विंक्ड वन आई. विंक्ड वन आई मतलब एक आई, जैसे बोलते हैं ना अपन, बंद करी हुई थी और एक आई खुली हुई थी, लाइक दैट. Alas, the elephant's child did not recognize it. But क्या हुआ, वेरी सैडली एलिफेंट चाइल्ड ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया कि वो क्रोकोडाइल है. तो उसने क्रोकोडाइल से जाके पूछा, देखिए क्या पूछा, एक्सक्यूज मी, asked the elephant's child most politely, but have you seen a crocodile? तो क्रोकोडाइल से ही पूछ रहा है, हैव यू सीन अ क्रोकोडाइल. देन द क्रोकोडाइल विंक्ड द अदर आई. दूसरी आई भी ओपन करी एंड लिफ्टेड हाफ इट्स टेल. और अपनी टेल को थोड़ा सा बाहर निकाला. किस में से, आउट ऑफ द मड, मिट्टी में से. एंड द एलिफेंट्स चाइल्ड स्टेप बैक मोस्ट पोलाइटली. और ऐसे वो डर गया, है ना, एलिफेंट्स चाइल्ड वो डर गया था, बेबी एलिफेंट डर गया था, तो अपने आप को थोड़ा सा पीछे कर लिया, है ना. जैसे ही उसने अपनी टेल निकाली, बेबी एलिफेंट ने अपने आप को थोड़ा सा पीछे कर लिया. बिकॉज ही डिड नॉट विश टू बी स्पैंक्ड अगेन. तो वो डर गया था कि कहीं ये भी ना मुझे स्पैंक कर दे. कम हिदर लिटिल वन, सेड द क्रोकोडाइल, फॉर आई एम द क्रोकोडाइल. तो यहाँ पे क्रोकोडाइल ने क्या बोला कि इधर आओ, मैं ही हूँ क्रोकोडाइल. Then the elephant's child grew all excited and kneeled down on the bank and said, "You are the very person I have been looking for these long days. Will you please tell me what you have for dinner?" अब यहाँ पे उसने क्वेश्चन भी पूछ लिया और क्या बोला, मतलब सबसे पहले तो जैसे बोला ना क्रोकोडाइल ने कि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ, तो क्या बोला यहाँ पे एलिफेंट चाइल्ड ने, द बेबी एलिफेंट सेड दैट, बहुत खुश हुआ. सबसे पहले तो एक्साइटेड मीन्स हैप्पी, है ना, वेरी हैप्पी टू मीट क्रोकोडाइल. एंड नील डाउन, नील डाउन मतलब अपने घुटनों पे बैठ गया, है ना. नील डाउन मीन्स अपने घुटनों पे बैठ गया ऑन द बैंक एंड सेड. उसने क्रोकोडाइल से बोला, बेबी एलिफेंट ने, कि तुम मतलब ऐसे पर्सन हो जिसको मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ. यू आर द वेरी पर्सन आई हैव बीन लुकिंग फॉर ऑल दीज लॉन्ग डेज. फिर उसने क्वेश्चन भी पूछ लिया, विल यू प्लीज टेल मी, क्या तुम मुझे बताओगे, व्हाट यू हैव फॉर डिनर, तुमने डिनर में क्या खाया. कम हिदर लिटिल वन, सेड क्रोकोडाइल, एंड आई विल विस्पर. तो यहाँ पे क्रोकोडाइल ने बोला, इधर आओ मैं तुम्हारे कान में बताता हूँ.
Then the elephant's child put his head down close to the crocodile's mouth, and the crocodile caught him by his little nose. अब जैसे ही बेबी एलिफेंट ने अपना हेड नीचे किया, उसके माउथ के पास, क्रोकोडाइल के माउथ के पास लेकर गया, तो क्रोकोडाइल ने क्या कर लिया, फटाफट से बेबी एलिफेंट की नोज को पकड़ लिया, लिटिल नोज को पकड़ लिया. He said it between his teeth like this. I think today I will begin with elephant's child. तो उसने क्या बोला कि अपने दांतों के बीच में पकड़ लिया उसने नोज को और बोला कि मुझे लगता है आज मुझे अपना डिनर जो है ना वो एलिफेंट चाइल्ड से स्टार्ट करना चाहिए. मतलब एलिफेंट चाइल्ड को खाना चाहता था. Speaking through his nose, the elephant's child said like this, "Let go. You are hurting me." The snake was watching this and shouted to the elephant's child, "Pull hard as you can, else you would be eaten." अब बेचारा एलिफेंट कुछ बोल नहीं सकता था, कुछ कर नहीं सकता था, तो वो अपनी नोज से मतलब थोड़ा सा ऐसे बोलता है ना तुतला कर बोलना, तो वो ऐसे बोला था, लेट गो मी, मुझे जाने दो. यू आर हर्टिंग मी, मुझे हर्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा. तो ये सब कौन देख रहा था, स्नेक ये सब देख रहा था कि क्रोकोडाइल के माउथ में एलिफेंट की नोज है, एलिफेंट है. तो वो ज़ोर से पीछे खड़े होकर ना चिल्ला रहा था स्नेक कि एलिफेंट प्लीज़ डू समथिंग, अपने आप को खींचो जितना ज़ोर से पीछे खींच सकते हो. पुल हार्डर एज यू कैन, अदरवाइज तुम इसका डिनर बन जाओगे, अदरवाइज ये तुम्हें खा लेगा. Then the elephant's child sat back on his little haunches. Haunches means अपनी क्या बोलते हैं उसको, जैसे बुटॉक, एंड थाई पे बैठ गया, अपने बैक पे वो ले डाउन हो गया. ओके, तो राइट डाउन यहाँ पे बुटॉक. ओके, और एल्स यू कैन से दैट अ थाई. ओके, एंड pulled and his nose began to stretch. और अपने आप को खींचता रहा बहुत ज़्यादा. और इस बीच क्या हुआ, उसकी नोज़ बड़ी होने लग गई. स्ट्रेच मतलब बड़ी होने लग गई. खींचना होता है ना, जैसे किसी चीज़ को खींचते हैं हम तो बड़ा होता जाता है, तो स्ट्रेच्ड आउट होने लग गई उसकी नोज़. He felt his legs slipping and he said through his nose, which was now nearly 5 feet long, "This is too bulge for me, for B." Okay,